الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شکر اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ مجلس سیرت النبی نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے. میں آپ موقع علماء کرام، مفتیان کرام، ائمہ حضرات، حفاظ کرام، بزرگان دین، قوم و ملت، توحید کے علم برداروں، بڑی خوش قسمتی اور بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس گاؤں کے صدی حضرات، جو حضرات دور ہیں، وہ اپنے سامنے جو خالی جگہ ہے اس کو پوری کر دیں. انشاءاللہ چند منٹ کے اندر بات مکمل ہو جائے گی. جس طرح مجھے اطلاع دی حضرت مولانا منہاج صاحب اشاعتی جنرل سیکرٹری مجلس احرار اسلام ضلع جالنا نے کہ آپ کو لندن میں پہنچنا ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے. پرسوں ہم مولانا مزمل صاحب کے گوامبڑ کے اندر رات 2 بجے واپس ہم دوسرے دن لاتور گئے کر وہاں سے بھی آنے میں تقریباً 2 بجے. رات جمعہ کا دن آج آپ یہاں ہیں. کل انشاءاللہ بدنا پور میں، پرسوں انشاءاللہ پردور کے اندر 4 تاریخ کو بروز سنیچر حضرت مولانا محمد حذیفہ صاحب غلام مستانی اور شاہی امام پنجاب حضرت مولانا محمد عثمان صاحب رحمانی صدر تحفظ ختم نبوت مجلس احرار اسلام ہند، یہ وارث انبیاء اور ملک کے وارث، سلطان ٹیپو کے وارث، مجاہدین ختم نبوت کے وارث، انبیاء کے وارث، جانشین ہمارے درمیان یہ آ رہے ہیں. میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں انشاءاللہ یہاں کے نوجوانوں سے کہ آپ بھی عصر کی نماز پردور تعلقے کے اشٹی گاؤں نام ہے، اس مدرسہ عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عصر کی نماز پڑھی. عصر کے بعد آپ کا نظم ہے انشاءاللہ. مغرب کے فوراً بعد جلسہ شروع ہوگا. یہ پیغام بھی ہم ساتھ میں دیتے جا رہے ہیں. مسلسل سفر ہے الحمدللہ. دیوانوں اٹھو اور ایک کام کرو اور وہ بھی صبح و شام کرو. دیوانوں اٹھو اور ایک کام کرو اور وہ بھی صبح و شام کرو. پیغام ختم نبوت کو سب لوگوں میں تم عام کرو. مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے. ابھی آپ نے شعرا کو سنی. اللہ جزائے خیر دے جناب حافظ مصطفیٰ صاحب. کہاں پر لکھا ہم اورنگ رات کتنے بجے بارش کا موسم. یہ قافلہ قرآن کا نعت خواہ. کل یہ نعت پڑھتے پڑھتے اللہ کے نبی کو پیار آ جائے، اللہ کو پیار آ جائے کہ میرے محبوب کی تعریف کر رہا تھا. میرے دوست ہم کچھ نہیں ہیں لیکن ان کو سنے محبت سے. نعت ہم جیسے نہیں پڑھ سکتے. حافظ قرآن میں بارہا کہتا ہوں
ہم حافظ قرآن کے جیسا پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، عالم کے جیسا قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے، مفسر قرآن کے جیسے تفسیر نہیں کر سکتے، مورخ کے جیسے کتاب کی کتاب نہیں لکھ سکتے، میرے دوستوں محدث کے جیسے حدیث بیان نہیں کر سکتے، امام کے جیسے ہم نماز نہیں پڑھا سکتے، میرے دوستوں ہم وہ مقام کو نہیں پہنچ سکتے جو مقام اللہ تعالیٰ نے، جو مقام اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا، وہ مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از توی خود قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. میرے دوستو کل محبت کے فیصلے ہونے والے ہیں، قیامت کے دن محبت پہ فیصلے ہوں گے. جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہوگا وہ جنت کی طرف ہوگا، اور جو شیطان اور شیطانی اعمال سے محبت کرتا ہوگا اور شیطانی اعمال محبت میں اپنی زندگی گنواتی ہوگی، کل شیطان ان کے آگے ہوئے، شیطان کے پیچھے جہنم کے. میرے دوستو جو پیچھے ہے، جو اپنے سامنے جو جگہ خالی ہے اس کو پوری کر لے. انشاءاللہ چند منٹ کے اندر آپ کی بات مکمل ہو رہی ہے. اللہ خود جزائے خیر دے. امام صاحب حضرت مفتی عابد صاحب اور دیگر علماء کرام اور مولانا منہاج صاحب اتنے دور مسلسل ہمارے ساتھ سفر میں. ابھی ہفتے کے اندر بیان، جمعہ کے اندر بیان خطاب کر کے آئے، کبھی مستورات کے اندر، کبھی طلبہ کے اندر، کبھی مکاتب ان کے ذریعے الحمدللہ اللہ کی خدمت لے رہے. یہ کہتے ہیں فیض وسطانی ہے. حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی جگہ کو خالی نہیں رکھتا ہے، ایک جگہ اللہ اس کی جگہ کو دوسری جگہ پوری کرتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں، ہم انتظار کرتے تھے حضرت مولانا وسطانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ بڑا جلسہ ہوتا تھا کسی ادارے کے اندر، بڑی پبلک فنکشن ہوتا تھا اور کیسا دھوم دھام سے ان کے استقبال کا، ان کے امتحانات کا انتظار ہوتا تھا. ابھی القدیم حضرت جلوہ فرما ہوئے اسٹیج پر آئیں گے اور کتنے پیارے انداز سے قرآن کی آیت پڑھتے تھے. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. میرے دوستو یہ آیت کے ذریعے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کائنات اللہ کی ہے، کائنات کا رب اللہ ہے. اللہ نے کلمہ بنایا، اللہ نے قرآن اتاری ہے، اللہ نے اللہ کے رسول کو مبعوث فرمایا ہے، تمام رسولوں کو اللہ نے بنایا، ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، اپنے نبی کی بھی حفاظت کرتا ہے. اور جو اس کلمے کو اپنے سینے کے اندر بسا لے، جو قرآن کو اپنے سینے کے اندر بسا لے، جو کلمے کو اپنے سینے میں بسا لے، محمد رسول اللہ کی سنت کو اپنے سینے میں بسا لے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے سینے میں بسا لے. اللہ ایسے بندے اور بندی کی بھی، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو، مغرب کا ہو یا مشرق کا ہو، شمال کا ہو یا جنوب کا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. میرے دوستو محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر اسی میں روکانی تو سب کچھ نامکمل ہے. کہ محمد سے وفا توڑے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا توڑے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ و قلم تیرے ہیں. ہم محمد کی محبت کے اندر الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمد کی محبت کے اندر ان علماء کی محبت کرتے ہیں، ان حفاظ سے محبت کرتے ہیں، امام کی محبت کرتے ہیں، ماں باپ کی محبت کرتے ہیں، چھوٹے اور بڑوں کی عزت اور احترام کرتے ہیں. میرے دوست ہم ہمارے نبی نے سبق ہی کچھ ایسا پیار و محبت کا پڑھایا ہے. میرے دوست عزیزو کیسی محبت صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. ہمارے نبی کی محبت صحابہ کے دل میں کتنی محبت تھی، ان کے سینے نبی کی محبت سے لبریز تھے، بھرے ہوئے تھے. اللہ نے اسی محبت صحابہ کو عطا فرمائی. نبی کی سیرت آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وفات تک تمام احوال کو، تمام اخبار کو، آپ کی مقدس زندگی کو، آپ کی پاک ذات کو اور آپ کے معجزات کو، آپ کے فضائل کو، تمام چیزوں کو جمع کیا ہے محدثین نے، مورخین نے. ان تمام کو کہتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوست عزیزو آج بھی ہمیں ہمارے نبی سے محبت کرنا ہے.
زبان سے، آنکھوں سے، دل سے، ہمارے جسم کے اعمال سے، ظاہر سے اور باطن سے ہمیں اپنے نبی کی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز کے ذریعے ہم محبت کا ثبوت دیتے ہیں، روزہ رکھ کر ہم محبت کا ثبوت دیتے ہیں، مال کی زکات نکال کے محبت کا ثبوت دیتے ہیں، بیت اللہ کا حج کر کے محبت کا ثبوت دیتے ہیں۔ جب حج ہوتا ہے تو حاجی روزے رسول پر جاتا ہے، رسول اللہ کے روزے پر جا کر حاجی سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا خیر خلق اللہ۔ علماء اکرام فرماتے ہیں جب امتی اللہ کے نبی کے روزے پر جاتا ہے اللہ کے نبی نے اپنے امتی کے سلام کا جواب دیا تھا۔ میرے دوست عزیزو، ہمارے نبی کے مبعوث ہونے سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا؟ آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ ظلم کا دور ہے۔ یاد رکھو صرف سن کر ہمیں نہیں جانا ہے، آپ کو یقین ہوگا انشاءاللہ اس مجلس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ ہماری مدد فرمائے اور اس مجلس کو اور اس جمع کرنے کو اور اس سجانے کو، اس چھونے کو، اس کہنے اور سننے کو اللہ تبارک و تعالی ذخیر عقل فرمائے اور ہمارے لیے مستقبل میں مشعل رحمت ہے۔ میرے دوست عزیزو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز محفوظ ہے، قل الحمدللہ۔ سر کے بال مبارک سے، منہ مبارک سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کی ہے۔ کائنات میں خوش ہوتی ہے، فرماتے مورخین لکھتے ہیں کہ جنت افضل ہے، جنت افضل ہے یا وہ زمین کا ٹکڑا افضل ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ شعراء اپنے نعت کلام کے اندر کہتے ہیں جنت میں سب ہے مدینہ نہیں ہے، جنت میں سب ہے مدینہ نہیں ہے، اس لیے کہ مدینے میں نبی موجود ہے۔ جنت خالی ہے۔ میرے دوست عزیزو، جنت سے بھی افضل وہ ٹکڑا ہے جو ٹکڑا ہمارے نبی کے جسم اطہر سے مس کیا ہوا ہے۔ جنت سے روز ریاض الجنہ کے اندر میں آج جو جاتے ہیں اور 2 رکعت نماز وہاں پر پڑھتے ہیں، نبی پر درود اور سلام پڑھتے ہیں۔ محترم حضرات، ہم نبی کی سیرت کو پڑھیں، مطالعہ کریں، ہمارے نبی کی نبوت کو پڑھیں، ہمارے نبی کی رسالت کو پڑھیں، تعلیمات نبوت کو پڑھیں اور تعلیمات رسالت کو پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف جو نازل فرمایا ہے، اس قرآن شریف کی خود تلاوت کریں، اس کو سمجھیں۔ آج سے ہم کو نیت کرنا ہے انشاءاللہ کلمے کو، قرآن کو، نبی کی سیرت کو انشاءاللہ کمزور سے پڑھیں گے اور پڑھائیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، سیکھیں گے اور سکھائیں گے، سمجھیں گے اور سمجھائیں گے، انشاءاللہ نیک بنیں گے۔ جو غلطی ہمارے بڑوں سے ہوئی ہے، جو غلطی ہمارے بڑوں سے ہوئی ہے، جو غلطی مجھ سے اور آپ سے ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ غلطی ہمارے نسلوں سے نہیں ہوگی۔ آج رونا آتا ہے، آج جماعتیں آتی ہے ہمارے پاس، ہم پوچھتے ہیں بھائی آپ کو قرآن اس میں سے کس کو آتا ہے پڑھنا؟ ہر کوئی شرم سے کہتا ہے صاحب مجھے نہیں آتا ہے، لیکن میں کہوں اس میں سے دعوے کے ساتھ کہ آپ سب کو قرآن شریف پڑھنا تھا، تعجب کریں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، جیسے آپ اس کو ہاتھ میں لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو فیضان کا لفظ جاری فرمائے۔ قرآن کا فیض ہے، قرآن میں شفا ہے، قرآن میں رحمت ہے، قرآن میں شفاعت ہے، قرآن میں ہدایت ہے۔ میرے دوست عزیزو، قرآن شریف آج ہمارے اس گھر میں کتنے پڑھنے والے ہیں؟ آج ہمارے گھر میں قرآن کے پڑھنے والے کتنے ہیں؟ اگر ہم غور کریں گے تو دادا کو بھی نہیں آتا تھا، ابا بھی نہیں پڑھتے، ابا کو قرآن پڑھے اور اولاد کو بھی اسی طرح اگر ہم رکھیں گے ہماری نسل در نسل اسی طرح جہالت کے اندر ڈوبتی چلی جائے گی۔ غلطی ہمارے بڑوں سے ہوئی ہو یا نہ ہو، اگر ہم جماعت میں ساتھی لے کر بیٹھتے ہیں، کسی بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے کہتے ہیں آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں کام مساوات تھے، ہمارے زمانے میں کام مدرسے تھے، ہمارے زمانے میں کام مکتب تھے، کہاں ایسی تعلیم تھی جیسے آج بولو سوچ الحمدللہ آج جتنے منظم مکاتب قرآن ہیں۔ آج کوئی دیہات بتائے کہ اس دیہات کے اندر نہیں ہے، مکتب نہیں ہے، اس
इस देहात में मस्जिद नहीं है, इस देहात में मौलवी साहब पढ़ाने के लिए नहीं है, इस देहात में बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए नहीं है। ऐसे मौलाना मिन्हाज जैसे, ऐसे जाबाज और ऐसे तड़पने वाले धड़कते दिल और ऐसे उलमा इकराम आज भी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इस देहात के अंदर इंशाअल्लाह मस्जिद में तामीर होगी। मौलाना वस्तानी जैसे अल्लाह पैदा करेगा। और मौलाना वस्तानी साहब ने मुल्क की तारीख के अंदर, कल भी मैं ये बताया, हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतने मस्जिदें नहीं थी, इतने मदरसे नहीं थे, इतने जामियात नहीं थे, इतने मकातिब नहीं थे, इतने उलमा नहीं थे, इतने हुफाज भी नहीं थे जितने मौलाना वस्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत को अल्लाह ने कबूल किया। और उस मुअद्दिन मुजाहिद के जरिए से, उस दाई अल्लाह के जरिए से, खादिम कुरान के जरिए से अल्लाह ने वो काम लिया। उन मदारिस के अंदर से गरीब कहता था मौलाना हमारे पास मस्जिद है, हजरत मस्जिद का इंतजाम ऐलान करते थे, अल्लाह अपनी ताकत से मस्जिद खड़ा कर दे। मौलाना हमारे पास मौलाना नहीं है, मौलाना जो फारिग होकर आता, बेटा तू आलिम बना है, घर मत जा, और मैं तुझे मस्जिद से, तेरे बाप ने इसलिए जन्म नहीं दिया, तुझे इससे पैदा नहीं किया, तुझे खेत से उठा कर लाए, जंगल से उठा कर लाए, मिस्त्री काम से उठा कर लाए, टोकरे उठाने वाला था, नालियां साफ करने वाला था, जानवरों के पीछे जाता था, तुझे बच्चा समझकर किसी को बेटा पाल कर कहा, किसी को बेटा बनाया, किसी को भाई बनाया, किसी को अपना दादा बनाया, या अपने रिश्तों से नाते कलने के रिश्ते जोड़कर मौलाना पेट में उंगली डाल कर लोगों का अपने गोद कर फकीराना आए सदा कर चले, फकीराना आए सदा कर चले, मियां खुश रहो हम दुआ कर चले। मेरी बात हो, मेरा मदरसा है पातोशी, मेरे वालिद साहब को अल्लाह जज़ा करे, जमीन देकर चलेंगे। आज हम पैदल चलने को तैयार हैं, आज हम भूखे रहने को तैयार हैं, आज हम फटे पुराने में तैयार हैं। हमारे मदरसे अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला के लिए हमारी जमीन, हमारा घर। आज मुसलमान ये उठकर कहने से, उठने से पहले ये कह कर जाए मौलाना साहब आप मेरे में ये खिदमत के लिए तैयार है। इस्लाम के नाम पर लोगों ने कहते थे कि वो बैनर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए और टेक्नोलॉजी के जरिए लोग कह रहे हैं कि मुसलमान दिखलावा कर रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, अल्लाह के नबी के हमको तालीम है। साहबा ने अपने अल्फाज से कहा था नाम मोहम्मद पर, मोहम्मद के नाम पर हमारी जान कुर्बान है। साहबा ने कर दिखाए, मोहम्मद के नाम पे माल कुर्बान है। साहबा ने कर दिखाए, मोहम्मद के नाम पे वतन कुर्बान है। साहबा ने वतन छोड़ के बताए, बीवी बच्चे छोड़ कर बताए, अजीज अकारिब छोड़ के बताए, अपने जाओ जलाल सबको हशम कदम छोड़कर रसूलुल्लाह की खिदमत के अंदर, गुलामी के अंदर आना पसंद किए है। लेकिन मेरे दोस्तों दीन को बिकना पसंद नहीं किए। मेरे दोस्तों हर एक के पास अल्लाह ने आज क्या नहीं दिया है। हमको इतना अल्लाह ने खिलाया, इतना अच्छा पहनाया, इतना अच्छा पिलाया, इतना अच्छा रखा, माँ बाप दिए, भाई बहन दिए, बीवी बच्चे दिए, अजीज अकारिब दिए, दोस्त मोहब्बत दिए, वतन बिरादर ने वतन दिए। इतनी मोहब्बत पहले किसी को नहीं थी। हमारा नबी कहता था, जब हमारा नबी कलमे की दावत देने के लिए खड़ा हुआ, हमारा नबी कुरान की तालीम देने के लिए खड़ा हुआ, इस्लाम का ऐलान करने के लिए खड़ा हुआ, दुश्मनों की तरफ से वार आए, हमारे नबी को धमकाया गया, हमारे नबी को डराया गया, हमारे नबी को जान से मारने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि सिर्फ कहने पर गुस्से नहीं, हमारा नबी जब रात को आराम करने के लिए घर पे गया तो जल्लादों ने तलवारों से हमारे नबी को घेर लिया था। हमारा नबी जब नमाज फजर के लिए जब दरवाजा खोल के जब बाहर आएगा, एकदम एक बार की नबी पर हमला किया जाएगा, ऐसा उनका प्लान और मशवरा था। ये तारीख उठा कर देख लीजिए, पूरी तारीख के लिए बातें सुनने के लिए हमारे नबी के लिए बड़ा खोदा गया। हमारा नबी हरम के अंदर नमाज पढ़ता था, हमारे नबी के बदन पे पटोजरी रखी हुई, हमारे नबी को जान से मारने के लिए बड़ा पत्थर लाया गया। हमारे नबी रास्ते जाते तो कांटे बिछाए जाते। हमारे नबी आगे दावत की, इस्लाम की, कलमे की दावत देते थे। कोई कहता था ये जादूगर है, कोई कहता था ये साहिर है, इसकी बातें ना सुनो। हमारा नबी का दिल दुखता था, लेकिन हमारे नबी कभी बदला नहीं देते थे। 13 साल तक मुसलसल मक्का के अंदर नबी ने मेहनत की। ताइफ का सफर हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फज़ाइल किताब के अंदर पूरा वाक़या लिखा है कि जाओ ताइफ का वाक़या देखो। हमारे नबी जब रास्ते से जा रहे थे, शरीर बच्चों को नबी के पीछे लगाया गया, हमारे नबी पर पत्थर मारे गए, हमारे नबी का जिस्म खून से लहूलुहान हो गया, दोनों जूते खून से रंगीन हो गए। मेरे दोस्तों जब शरीरों से इत्मीनान हुआ, अल्लाह ताला की तरफ दुआ करने लगा। हमारे नबी ने दुआ सिखाई है, बोलो हमारे नबी ने बोलो दुआ सिखाई है, बोलो हमारे नबी ने, अरे बोलो हमारे नबी ने, अरे हमारे नबी ने दुआ सिखाई है, बदुआ नहीं सिखाई है। ना हमारे नबी ने किसी को बदुआ दी, ना साहबा ने बदुआ दी, ना औलिया अल्लाह ने किसी को बदुआ दी। आज जितने गाँव है, शायद
कोई ऐसा गाँव होगा जिस गाँव के अंदर कोई वली ना होगा। हर गाँव के अंदर अपना अल्लाह ने अपना बंदा भेजा है, वो अल्लाह का वली है, वो अल्लाह का बंदा है, वो रसूलुल्लाह का वफादार उम्मती है, वो इस्लाम का पहरेदार है, वो खत्म नबूवत का पहरेदार है, वो इस्लाम का अलमबरदार है, वो हाफिज कुरान है, वो वक्त का दाई है, वो मयालु है, दयालु है, इंसानियत उसके अंदर है। आओ हमारे पातुल शरीफ के अंदर हजरत ख्वाजा मखदूम अंसारी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना पीर खान, हजरत मौलाना निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पीर बने, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हो, उनके जो तो मुरीद है, हजरत उनके शेख है। ऐसा वली कितने दूर से हमारे गांव के अंदर आया। मैं अपने गांव की मिसाल देता हूँ, आप जाइए दरगाहों के ऊपर, किसने कहा, कौन कहता है लाओ किताब उठाकर, कौन सा मौलाना साहब कहते हैं दरगाह में जाना नहीं चाहिए, दरगाह में पढ़ना नहीं चाहिए, दरगाह में दुआ नहीं करना चाहिए। मेरे दोस्तों जाओ अल्लाह के वली के मजार पे जाओ और जाकर बैठो, बैठकर देखो रूहानी कैफियत कैसी बनती है। हमारा ईमान है अल्लाह का वली कब्र में जिंदा है, हमारा ईमान है तो बेशक हमारा ईमान है तो हम लोग अल्लाह का वली कब्र में जिंदा है। अल्लाह के जितने साहब अपने कब्र में हयात है, हमारा ईमान है कि हमारा नबी अपने कब्र के अंदर आराम और जिंदा है, हयात है। तुम्हारी ईमान शहीद मरता नहीं है, अल्लाह शहीद को अल्लाह जिंदगी देते हैं, लेकिन हमारी आंख उनको देख नहीं सकती, हम खुदा को नहीं देख सकते, फरिश्तों को नहीं देख सकते, हमने जन्नत और जहन्नुम को नहीं देखा। मेरे दोस्तों हमारी आंख झूठी हो सकती, हमारे कान झूठे हो सकते, हमारी जबान झूठी हो सकती, हमारी तहरीर और कलम झूठा हो सकता, लेकिन अल्लाह का फरमान, नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह सच्चा है, कुरान सच्चा है, कलमा सच्चा है, इस्लाम हक है और हमारा नबी भी सच्चा है। हमारा सच्चा नबी, आखिरी रसूल है। ऐसे झूठे पैदा होंगे, अपने आप को कोई नबी कहेगा, कोई महदी कहेगा, कोई ईसा कहेगा। ये बताना है दुनिया को, ये मजालिस लेने का मकसद ये है कि इसके तुम्हें बाखबर करना है। हमारा कलमा बदलने वाला नहीं है, कुरान बदलने वाला नहीं है, इस्लाम का हर्फ बदलने वाला नहीं है। हमारे नबी की शान भी कम नहीं होने वाली, हमारे नबी की शान में कम नहीं होगी, हमारा रसूल भी नहीं बदलेगा। हमारा रसूल क़यामत तक के सिवा तक के लिए है, सारी इंसानियत के लिए है, जिन्नात के लिए भी है, चरिंद और परिंद के लिए भी है। सारी दुनिया जानती है, सारी मखलूक जानती है, जमीन से लेके अर्श तक, जर्रे से लेके पहाड़ तक, जमीन का जर्रा जर्रा, दरख्त का पत्ता पत्ता, पानी का कतरा कतरा, दाएं और बाएं, आगे और पीछे, मशरिक और मशरिक, शुमाल जुनूब, हर कोई जानता है। हमारे नबी का नाम अर्श मुअल्ला पर है, हमारे नबी का नाम आज़ान के अंदर है, हमारे नबी का नाम नमाज के अंदर है, हमारे नबी का नाम कुरान के अंदर है, हमारे नबी का नाम दुरूद और सलाम के अंदर है। हमारे नबी का नाम, जब बच्चा पैदा हो हमारे नबी का नाम लिया जाता है, और जब दुनिया से गुजारे हैं तो हमारे नबी का नाम लेकर दी जाते हैं। खबर के अंदर भी जब सवाल होगा तो बात वो कहते उलमा इकराम कि उसकी खबर को भी इतना कुशादर किया जाएगा, सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा और उसको दिखाया जाएगा और कहेंगे कि तुम ये शख्स को जानता है, पहचानता है। नबी का उम्मती आशिक रसूल होगा, नात पढ़ पढ़ के नबी का इश्क जागा होगा, नात देखने के बाद भी पहचानने बैठा नबी। मेरे दोस्त अजीजों, साहबा ने एक सवाल किया, अल्लाह के रसूल आदम अलैहिस्सलाम से क़यामत तक कितने लोग होंगे, आप अपनी उम्मत को कैसा पहचानेंगे? आप अपनी उम्मत को कैसा पहचानेंगे? नबी ने कितना प्यारा जवाब दिया था। नबी ने कहा कि सारे काले घोड़े हैं और काले घोड़ों के ऊपर बाज घोड़ों के पेशानी के ऊपर चांद और तारा उतरा हुआ हो, तो बताओ चांद तारे वाला घोड़ा उसमें से पहचाना जाएगा या नहीं जाएगा? कहा कि मेरी उम्मत की ये निशानी होगी। वजू के अंदर जितने आज़ा धुले जाते हैं, चेहरा धुला जाता है, कोनियों तक हाथ धुले जाते हैं, टखनों तक पैर धुले जाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के वजू के आज़ा में चमकने लग जाएंगे। मेरे दोस्तों, हमें मत सिखाओ, नबी की मोहब्बत हमारे दिल में आज भी करनी है। मुसलमान हर एतबार से कम हो सकता है, माल के एतबार से, तालीम के एतबार से, डिग्री के एतबार से, सेहत के एतबार से, अपने म्यान के एतबार से, अपने रोग के एतबार से, हर एतबार से मुसलमान कम हो सकता है। नमाज के एतबार से, रोजे के एतबार से, ज़कात और सदक़ात के एतबार से, हज बैतुल्लाह के एतबार से मुसलमान किसी भी तरह से कम हो सकता है। शराबी कबाबी हो सकता है, जुआरी चिश्ती से भी गुनाह कर सकता है, लेकिन याद रखो नबी की मोहब्बत में मुसलमान कभी करिए नहीं वाला है। हर बंदे के दिल में, हर बंदी के दिल में, बच्चे बच्चे के दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नबी की मोहब्बत बढ़ाना है
और नबी से मोहब्बत करना है और नबी की सुन्नतों को अपनाना है। आज नियत करो इंशाअल्लाह मेरे नबी की मोहब्बत को मैं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं सर पे टोपी भी पहनूंगा, चेहरे पे दाढ़ी भी रखूंगा, अपना लिबास भी बदलूंगा, अपने कुरान अपने घर में खरीद लेकर आऊंगा और अपने दिगा तालीम को मैं जिंदा करूंगा इंशाअल्लाह। मेरे अब्बा नहीं पढ़े ठीक है, उनके दौर में उतने मदरसे नहीं थे, उतनी तालीम नहीं थी, उतनी दौर नहीं था, उतने उलमा नहीं थे, उतने मुअल्लिम नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई मुसलमान मैं का लाल ये दावा कर सकता है कि आज किसी गांव के अंदर, किसी तालुके के अंदर एक आलिम और हाफिज उसको नहीं मिलता। मेरे दोस्तों, कंजूसी हमारे अंदर है, मुखालत हमारे अंदर है। आओ हम इन उलमा को गिरा कद्र और तोहफा देंगे, जहाँ हमारी खुशी होगी हमारा इमाम भी खुशी के अंदर शरीक होगा इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, हम ऐलान कर रहे हैं जो देहात मजालिस के जरिए, मजलिस अहरार इस्लाम के जरिए, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के जरिए मजल एक गाँव ऐसे तलाश कर रहे हैं जिस गाँव के अंदर मकतब नहीं, इंशाअल्लाह वहाँ मकतब होगा, मस्जिद नहीं वहाँ मस्जिद होगी, इमाम नहीं वहाँ इमाम होगा और वो इमाम मोहल्ले होगा और वो मुसलमान बच्चों को कुरान शरीफ तालीम देगा। इस इमाम दुनिया वाले दे दे के क्या देंगे? मेरे दोस्तों, अपने मोहब्बत भरे मुंह को सौगात आप देंगे। आपने मोहब्बत में फूल पेश किए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके फूल कबूल किए, इसलिए कि मोहब्बत का हदिया है आपका। आपने मोहब्बत में सलाम किए, हमने आपको कबूल किए, लेकिन देने वाला रब्बुल आलमीन है, अहकमुल अहकमीन है, अरहमुर राहिमीन है। जो कुरान शरीफ पढ़ेगा, जो कुरान शरीफ को पढ़ाएगा, मुसलमान बच्चों को तालीम देगा, कल अल्लाह ताला क़यामत के रोज अर्श के साए में उसको जगह देंगे। अर्श किस है? नबी ने फरमाया, उसकी तारीफ की है, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान शरीफ को सीखे और सिखाए। नियत करो इंशाअल्लाह मैं पढ़ूंगा और पढ़ूंगा, सीखूंगा और सिखाऊंगा, समझूंगा और समझाऊंगा। आज मेरे पास समझ में आ गई, अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो पढ़ूंगा क्या, सीखूंगा नहीं तो सीखूंगा क्या, खुद ही नहीं समझा तो दूसरे को क्या समझेगा। हज़रत मौलाना अली नबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़ जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़ जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। मेरे दोस्तों, पैदा होने से लेकर तो अपने सोचे, न किसी की आंख का नूर हो, न किसी के दिल का करार हो, न किसी की आंख का नूर हो, न किसी के दिल का करार हो, जो किसी के काम ना आ सके वो एक मुश्किल गुबार हो। वो कुछ भी नहीं, मिट्टी का ढेरा है, पानी का कतरा है, क्या भरोसा जिंदगानी का, क्या भरोसा जिंदगानी का, इंसान बुलबुला है पानी का, कब हमारे नाम की खबर रखी, कल की सुबह किसने देखा। मेरे दोस्तों, आज मौका है, उठ जाओ, रात के वक्त उठो, नमाज तहज्जुद पढ़ो इंशाअल्लाह, रो रो के अल्लाह से दुआ करो। हमने कुरान नहीं पढ़ा, अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मैंने कलमे को अपने सीने में नहीं मसाया, अल्लाह माफ कर। सारी दुनिया नबी से मोहब्बत करती थी और मेरे दिल के अंदर कैसा निफाक था, मेरे आंखों में आंसू भी नहीं आते, मेरा दिल भी नहीं धड़कता, मेरे दिल के अंदर ज़बान भी नहीं आती, मेरे दिल मेरे ज़बान से दुरूद और सलाम तक नहीं निकलता। ऐ अल्लाह, सारी मखलूक तुझे सजदा करती है, जमीन का जर्रा जर्रा, पानी का कतरा कतरा, दरख्त का पत्ता पत्ता, कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो अल्लाह को सजदा नहीं करती है। मैं कैसा बेनमाजी है, मैं कैसा इंसान है जो सारी मखलूक तुझे सजदा करती है, मैं तुझे सजदा नहीं कर रहा। उठो, आज रात से उठेंगे इंशाअल्लाह, रोएंगे अल्लाह का कलाम लेकर, मस्जिद का गेट पकड़ पकड़ कर धाड़े मार के रोएंगे। मेरे दोस्तों, मुसल्ले पे आकर रोएंगे, मस्जिद का मिंबर पकड़ कर रोएंगे। ये कल क़यामत में गवाही देने वाला है। रसूलुल्लाह ने कहा, जिस दरख्त के नीचे, जिस पत्थर पर आप अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, कल क़यामत के दिन वो पत्थर, वो दरख्त, वो चीजें जहाँ पर अल्लाह का नाम जिन घड़ी लिया जाता है, कल क़यामत के दिन आपके हाथ में वो गवाही देने वाले हैं। गवाही होगी, अल्लाह के नबी का नाम लिया गया, अल्लाह के नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ा गया, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ जोड़ा गया। मेरे दोस्त अजीजों, इंशाअल्लाह अपने बच्चों की तालीम हम मुकम्मल करेंगे। जहाँ कम है मुसलमान अपने उलमा के पास, मैं कहने की जो बात है वो आप ध्यान से सुनिए। हर बंदा नाम रखने के लिए तो उंगली उठाने के लिए मौलाना मिन्हाज साहब बार अपने बयानों के अंदर बताते हमारी कमियां क्या है, मुनकरात पर उनकी निगाह जाती है, वो बताते हमारे अंदर कितनी कमी है। अगर मैं बुराई बयान करते रहूं तो जिंदगी और रात खत्म हो जाएगी। मेरे दोस्तों, हम अच्छाई को मिटाएंगे
कहते हैं। इसलिए इंशाअल्लाह आप नियत करें, इंशाअल्लाह अपने इमाम को मोतबर समझे, अपने आलिम को मोतबर समझे, अपने अब्बा पर एतमाद रखे, अपने अम्मा पर एतमाद रखे, अपने भाई बहनों पर एतमाद रखे, अपने बीवी बच्चों पर एतमाद रखे। भरोसा तो अल्लाह पर किया जाता है, अल्लाह के वास्ते से पर मोहब्बत से मोहब्बत भरोसा एतमाद किया। मेरे दोस्तों, इनको कहो मौलाना साहब मैं तैयार है आज से, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये रकम है, मैं अपना वक्त देने को तैयार है, माल देने को तैयार है, टाइम देने को तैयार है, मैं हर एतबार से मैं आपकी खिदमत को तैयार है। मस्जिद का ऐलान हो, मकतब का ऐलान हो, जरूरत का ऐलान हो, जहाँ जिस तरीके से जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह, अपनों की हो या गैरों की हो, पड़ोसी की हो या रिश्तेदार की हो, जिस एतबार से मैं ताउन कर सकता है, एक घुट पानी पिला सकता, एक लुकमा खाना खिला सकता, किसी को कपड़ा पहना सकता, रास्ते से कांटा उठा सकता, तकलीफ देने वाली चीज को हटा सकता, या जिस एतबार से भी मैं खिदमत करने के लिए आज से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। हर एतबार से अपनी खिदमत करो, बीवी बच्चों की खिदमत, माँ बाप की खिदमत, भाई बहनों की खिदमत, रिश्तेदारों की खिदमत, पड़ोसियों की खिदमत, अपने ये गैर मुस्लिमों की, इन बिरादरान वतन की भी हमको खिदमत करना है। इन्हें तो बता दे, ये क्या जाने, ये नाम मोहम्मद को या फजीलत को क्या जाने, इन्हें क्या पता कुरान में क्या है, इनको क्या पता इस्लाम के अंदर क्या तालीम है, इनको क्या पता कलमे की नूरानियत क्या है, कलमे में कितना बड़ा ईमान का दौलत है, इन्हें क्या पता है। मेरे दोस्त अजीजों, जो हीरा होता है, हीरे की परख हर कोई जानता थोड़ी है। बच्चे के हाथ में हीरा दे दो, बच्चे के हाथ में 1500 के नोट दे दो, वो कागज समझ के खाने का चूरा करके फेंक दे। मेरे दोस्त अजीजों, समझदार तुम है, अक्लमंद तुम है, होशियार तुम है। अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात तुम्हें बनाया है, अल्लाह ने अपने दीन के लिए तुम्हें कबूल किया है, अल्लाह ने अपने दीन के लिए रसूलुल्लाह को भेजा है, अल्लाह ने अपने कुरान के लिए रसूलुल्लाह को मकबूल फरमाया है, दीन को नबी पर मुकम्मल फरमाया और नबी के लिए सहाबा को मुंतखब फरमाया। कैसे सहाबा थे। ज़ैद इब्न दसना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक शख्स आया और कहने लगा, वो ज़ैद तुम्हें सूली दी जा रही है, तुम्हें जान से जान दिया, तुम्हारी जान ली जा रही है, तुम्हें सूली पर चढ़ाया गया, अब अनकरीब तुम पर हमला होने वाला है। अब तुम्हें यह पसंद करते हो कि तुम्हें अभी से छोड़ दिया जाए और तुम्हारी जगह पर रसूलुल्लाह को जो है तो कत्ल कर दिया जाए। हज़रत ज़ैद इब्न दसना रज़ियल्लाहु तआला ने कहा, तुम क्या कहते हो, मेरा नबी जहाँ पर भी है, मेरे बदले में मेरे नबी को कांटा भी चुभे और कांटा चुभने की वजह से मेरे नबी को तकलीफ हो, तो तकलीफ में मैं बर्दाश्त कबूल नहीं करता। हज़रत साद इब्न रबी रज़ियल्लाहु तआला, ओहद का मैदान है, 12-13 तीर जिस्म के ऊपर लगे, जिस्म छलनी हो गया है, एक तरफ पड़े हैं। उबय बिन काब रज़ियल्लाहु तआला की निगाह पड़ती है, आखिरी वक्त है, अब दुनिया से रुखसत होना है, जंग का मैदान खाजा है। हम और तुम होते तो कहते मेरा सलाम मेरे बीवी को, मेरे बच्चों को, मेरे अब्बा को, मेरे घर को, दुनिया भर के हम बातें करते हैं, लेकिन दोस्तों मोहब्बत ये होती है। हजरत साद इब्न रबी रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत उबय बिन काब से कहने लगे, ऐ काब मेरा सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा देना और मेरे हाल की खबर मेरे नबी को कर देना। मेरे दोस्त अजीजों, सहाबा के दिल में कैसी मोहब्बत थी रसूलुल्लाह। एक ऊंट आया और ऊंट आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करने लगा। सहाबा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, एक जानवर आपको सजदा करे, हमसे ज्यादा मुस्तहिक हम आपको सजदा करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, खुदा के सिवा किसी और को सजदा करना जायज नहीं। हमारे नबी की तालीम है, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं, जैसे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ऐसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी भी नहीं। आप पर नबूवत मुकम्मल हो गई, रिसालत मुकम्मल हुआ, दीन मुकम्मल हो गया, कुरान मुकम्मल हो गया, कलमा मुकम्मल हुआ। अब मेरे दोस्त अजीजों, हमें अपनी जान की बाजी देना पड़े तो देंगे इंशाअल्लाह, हम अपना तन मन धन देंगे इंशाअल्लाह। मुसलमान कंजूस नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, अभी तक हमने कुर्बानी दी है, ये मस्जिद यूं ही खड़ी नहीं हुई। ये जितने बुजुर्ग लोग हैं वो जानते थे कि मस्जिद इससे पहले कैसा थी,
इलाका कैसा था, आज कितने मस्जिदें हैं, कितने मदरसे हैं, कितने मकातिब हैं, कितने मुसलमानों के चेहरे पे दाढ़ी और टोपी है। आज जवान जवान बच्चा दाढ़ी और टोपी के अंदर आपको नजर आता है। जब हमारी शादी ब्याह होती है, हमारा नौशा जब बन के आता है, काश हमारा नौशा वैसा ही अपनी जिंदगी गुजारे। तो एक दिन का नौशा बने, एक दिन की खुशी में देखता है कि कितना मजा आता है, और ऐसा ही हमेशा रहो, लेकिन दुनिया में भी और आखिरत में भी कितना मजा है। मेरे दोस्त अजीजों, हम अपने बच्चों को बनाएं, अपनी बच्चियों को संवारें। अब जहाँ गलती उनको रोके टोके, बच्चे हैं गलती करते हैं, जवान जज्बात में आते हैं, लेकिन उनको संभालना हमारा काम है, कायदीन का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा इकराम, हमारे कायदे जमात के एतबार से, मदारिस के एतबार से, मकातिब के एतबार से, खानखाओं के एतबार से, हमारे अकाबिरीन उलमा इकराम सारी उम्मत की फिक्र ले रहे हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर बोलो बेशक इतने मसाजिद, इतने मदारिस, एक जमात का ऐसा निज़ाम, खानका ऐसा निज़ाम, जिक्र सुलूक का ऐसा इंतजाम किसी और कौम के अंदर, किसी और धर्म के अंदर, किसी और जात पात के अंदर। आप गौर कीजिए मेरे बातों पर, आप तलाश कीजिए, आपको ये चीज नहीं मिलेगी। आज बच्चा पैदा हो जाए, आजान देने के लिए मौलाना मिलेंगे, नाम रखने के लिए मौलाना मिलेंगे, बच्चा बड़ा हो जाए, बोलने लग जाए, कलमा पढ़ाने के लिए मौलवी साहब मिलेंगे, बिस्मिल्लाह से लेकर कुरान पढ़ने तक और हाफिज कुरान, आलिम दीन पढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे हमारे इदारे अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके बाप भी नहीं है, जिसकी माँ नहीं है, जिसके माँ बाप भी नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है, लावारिस ऐसे बच्चे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, जिनकी परवरिश का कोई इंतजाम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों ने आपके एक एक रुपये चंदे ने, आपके एक एक रुपये की रकम से कितने कहाँ के मदरसे इदारे चल रहे होंगे, आपको भी खबर है। मेरे दोस्तों, मुसलमानों ने उलमा इकराम रात दिन जंगलों के अंदर रहते हैं। मदरसे मौलाना मस्तानी साहब ने जितने मदरस बनाए, तकरीबन मदरसे आप देखो गांव के बाहर मिलेगा, जंगल के अंदर मिलेगा, बंगाल के अंदर उसको बना दिया कि आज जंगल था, आज कैसा पढ़ते जंगल। आज रूहानियत, हमारा बच्चा अगर कहे जंगल में अकेला सुलाव ले जाके, किसी बाप माँ की हिम्मत है, जिगर आ जाए मुंह को खली जाएगा माँ के कि मेरा बच्चा जंगल में सुनाए। मेरे दोस्त वो जंगल नहीं था तो क्या था, वो जंगल नहीं था तो क्या था, जहाँ छाछ शंकार थे उसको उलमा इकराम ने अपने खून पसीने की कीमत लगाकर अपने माँ बाप को छोड़कर 6-6 महीने साल तक माँ बाप को छोड़कर जंगलों के अंदर तुम्हारे बच्चों की तरबियत के अंदर उलमा इकराम रात रात दिन दे रहे मदरसों के। कल के बयान में ये कहा, हमारे अकाबिरीन ये करे, हमारे मस्जिदें 24 घंटे आबाद हो जाए, हमारी मस्जिदें 24 घंटे आबाद हो जाए। कितने दिनों से मस्जिद हो रही है, हमारे गांव का निकाल निकालिए, कितने मस्जिदें हमारे ऊपर 24 घंटे आबाद रहती है। लेकिन जाकर देखिए मदरसों के अंदर 24 घंटे मदरसा आपको आबाद नजर आएगा। जब भी देखेंगे बच्चा पढ़ता हुआ मिलेगा, रात में पढ़ता हुआ, दिन में पढ़ता हुआ। पूछो जाकर बच्चों से तू कितने बजे उठता है बेटा, वो बच्चा जो घर में कब तक भी नहीं सुनता था ना, माँ परेशान थी, आजी तुम ही देखो तुम्हारा बच्चा, मैंने उठाती, मेरी जान भी उसको उठाता होता कि अब तक नहीं। वो माँ, सबकी माँ जिसके पेट से ये बच्चा पैदा हुआ है, जिसने इसको जन्म दिया है, वो बच्चे के धोने के लिए परेशान हो जाती है, गंदगी करता है, पेशाब करता है, बिस्तर धोने के लिए। ये उलमा इकराम देखो वही बच्चे को कहाँ से आज आपको देखकर इतने खुश हो रहे हैं, आपकी नजर, आपका दिल सुकून हुआ, आपके रूहानी को तो सुकून हुआ, आपका दिल खुश हुआ। हम जैसे गांव के अंदर आए, यहाँ के नौजवान अपनी जान निछावर कर रहे थे, फूल के बजाय जान निछावर। ये बता रहे कि आलिम की इतनी कदर है, अगर हमारा नबी तुम्हारे जगह पर होता, हम नबी के लिए ऐसे अपनी जान निछावर करते। मेरे दोस्तों, एक बाप को मालूम होता उसकी औलाद की क्या कीमत है, और औलाद को मालूम होता उसके बाप की क्या कीमत है। जिसको सच्चे बाप से मोहब्बत होती है, जिसको माँ से मोहब्बत होती है, उसको पता चलता है मेरा बाप क्या चीज है, बाप क्या चीज है, माँ क्या चीज है। जब माँ सब घर में हो, माँ ना हो, से पता चलता बच्चा सबको रोते रोते ये घर से वो घर तो रोता रहेगा। मुझे उससे सब कोई चॉकलेट देते, बिस्किट देते, पैसे देते, दुनिया तेरे कदमों में डालते, वो बच्चा छोटा लात मारेगा, कहेगा मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। एक मासूम बच्चा मोहब्बत का इज़हार कर। मेरे दोस्तों, ये क्या सबक है, या क्या थ्योरी है, क्या फलसफा है। मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह ने ये
सबक हमको सिखाया है, तुम मुझे नहीं देख सके, तुम मेरे भाई हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साहबा मौजूद थे, साहबा के दरमियान में रसूलुल्लाह जो दूर है जरा नजदीक आ जाओ, बात खत्म हो रही, 4 मिनट के अंदर में बात करो, चलती तो रसूलुल्लाह के पास साहबा मौजूद थे। साहबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे तुम तो मेरे साहबा हो, काश मेरे भाई मुझे। रसूलुल्लाह ने साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल आपके भाई कौन है, आपके भाई कौन है? कहा कि मेरे वो भाई वो है जो बगैर मुझे देखे मुझ पर ईमान लाएंगे। साहबा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल हम आपके भाई नहीं? कहा कि आप तो मेरे साहबा हैं, मेरे भाई तो वो है जो बिन देखे रसूलुल्लाह पर ईमान लाएंगे। मेरे दोस्तों, कसम खुदा की, हमने अल्लाह को नहीं देखा, जन्नत को नहीं देखा, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर, रसूलुल्लाह के एतमाद पर, रसूलुल्लाह के भरोसे पर हमने कलमे को हक समझा, कुरान को अल्लाह का कलाम समझा, इस्लाम को सच्चा दीन समझा। रसूलुल्लाह की मोहब्बत के अंदर हमने कलमा, कुरान और अल्लाह को पढ़े। हम ईमान लाए मुसलमानों, अल्लाह के नबी को बिना देखे कि हम ईमान लाए, और ऐसा मजबूत ईमान लाए। दुनिया एक तरफ हो सकती है, हमारा सब कुछ लुट सकता है, हमारी माँ बाप के ऊपर हालात आ सकते हैं, मेरे माँ बाप कुर्बान हो सकते हैं, बीवी बच्चे कुर्बान हो सकते हैं, वक्त पर ये जान क्या चीज है, जान दी हुई उसी की है। अब तो ये है कि हक अदा ना हुआ, वक्त आने पर ये जान भी दे सकते हैं, लेकिन दीन और ईमान नहीं दे सकते। दुनिया की तारीख उठाकर देखो, जब दुनिया से इंसान जाता है, बगैर पानी के जा सकता, बगैर खाए के जा सकता, बगैर कपड़े के जा सकता, बगैर घर बनाए के जा सकता, बगैर शादी के जा सकता, बिन औलाद के जा सकता, बिन खुशियां मनाए के जा सकता, लेकिन याद रखो बगैर दीन ईमान के नहीं जा सकता। अगर बेदीन होकर गया, बेईमान होकर गया, बेदीन और ईमान के बगैर इस दुनिया से चले गया, बेईमानी की मौत मरेगा, कुफ्र की मौत मरेगा, शिर्क की मौत मरेगा, बिदअत की मौत मरेगा, इर्तिदाद की मौत मरेगा, मुनाफिक और गद्दार दुश्मन की मौत मरेगा। याद रखो जितने इसी मौत मरेंगे बेदीन और बेईमान होंगे, उन सब का हशर शैतान खबीस लेकिन मलऊन के साथ होने वाला है। मुसलमानों सबर करो, हमारे नबी ने सबर करना सिखाया, हमारे नबी ने साहबा को सबर सिखाया, साहबियात को सबर सिखाया। रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया मैं भूखा प्यासा हूँ। एक साहबी रसूल आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं बड़ा भूखा हूँ, मुझे बड़ी भूख ने बेताब कर दिया है, अल्लाह के रसूल मुझको देख तो सही है। अपना कुर्ता उठाया और देखा दिखाने लगा रसूलुल्लाह को मेरे पेट पर पत्थर बंधा हुआ है। रसूलुल्लाह ने कहा सबर करो। रसूलुल्लाह ने जब अपना पहला हाथ उठाया तो रसूलुल्लाह के पेट पे 2 पत्थर थे। भूखा रहना हमारे नबी ने सिखाया, गद्दारी करना, चोरी करना, हरामकारी करना, अपनी बीवी को छोड़कर किधर और मुंह मारना, जानवर की जिंदगी, कुकुर सुअर और कुत्तों की जिंदगी गुजारना हमारे नबी ने सिखाया। मुसलमान इज्जत से पैदा हुआ है, इज्जत से जाएगा इंशाअल्लाह। देख ले रहे हो कुत्तों की जिंदगी, वैसी मौत मर रहे हैं, कैसी मौत मरते हैं, कैसी मौत मर रहे हैं। मुसलमान को मस्जिद में देखेगा, मुसलमान आपको मस्जिद में देखेगा, मुसलमान आपको इज्जत की जगह पे दिखेगा। और वो दुश्मनों को देखो, वो जालिमों को देखो, वो आपको अक्सर कहाँ दिखेंगे, अस्पतालों के अंदर, बुरी बुरी जगहों के ऊपर दिखेंगे, गंदी जगह पर होंगे। शयातीन उन पर मुसल्लत है, खबीस उन पर मुसल्लत है, हालात उन पर मुसल्लत है। कोई अदालत का ऐसी अदालत नहीं है जिसमें उनका केस नहीं है। उठाओ मुसलमानों ने तारीख में जब से सबर किया, आज भी सबर करना है। नबी के जमाने में सबर हुआ, साहबा के दौर में सबर हुआ, आज भी मैं तुमको यही दर्स देने आया हूँ और ये हमारे अकाबिरीन का दर्स है। मुसलमानों अपने जज्बात की कदर करो, अपने मोहब्बत की कदर करो। सलाम है तुम्हारी इज्जत को, सलाम है तुम्हारी टोपी और दाढ़ी को, सलाम है तुम्हारे दिल के रग रग के अंदर नबी के नाम पे अपनी जान देने के जज्बे को। मेरे दोस्तों इसकी सबर से काम लो, हमें बिना वजह कहीं पे खर्च नहीं करना है। अल्लाह ने मौका दिया, इंशाअल्लाह वक्त आएगा सुल्तान टीपू की तारीख हम दोहराएंगे। मुल्क हमारे बाप का नहीं, हमारी जागीर है। मेरे दोस्तों इस जमीन का जर्रा जर्रा हमारा हक है, जमीन के जर्रे जर्रे पे हक है, पत्ते पत्ते पे हमारा हक है, आसमान के साए में हमारा हक है। हम यहाँ पर किराएदार नहीं है, हमारी जागीर है। हमारे बाप दादा के लाखों मुसलमान करोड़ों अरबों खरबों का खून बहा है इस जमीन के लिए। सुल्तान टीपू ने अपनी जिंदगी के अंदर ही वादा कर रहे, दिन भर सुल्तान तलवार लेकर जालिम अंग्रेज से लड़ता
चाहता था, लेकिन तलवार सुल्तान ने मुल्क को सुल्तान ने, भारत देश को सुल्तान ने अंग्रेजों के हवाले नहीं किया, अपनी जान दी, लेकिन मुल्क को, भारत देश को अंग्रेज के हाथ में अपनी जिंदगी में नहीं दिया। ये देश को संभालना है, मस्जिद को संभालना है, घर को संभालना है, बूढ़ी माँ को संभालना है। ऐ माँ, तुझे सलामती हो, बिन आँख की संभालती है, बिन कान को संभालती है, बिन पैर को संभालती है। ऐसी माँ मिलेंगी, बच्चा पूरा भी हो रहा है, न उसे हाथ है, न कान है, न पैर है, न कुछ है। माँ बच्चा फूल पैदा होने से लेकर बच्चे, लोग कहते हैं इसको माँ डॉक्टर दो। आज के उस वक्त अगर ये डॉक्टर होते, कितने बच्चों को आज मार के डालते होते थे। लेकिन वो माँ ने लंगड़ा बच्चा, लूला बच्चा, अंधा बच्चा, काना बच्चा, लकड़ा बच्चा, काला बच्चा, कैसा क्यों ना हो, माँ कहती मेरे पेट से आया है, मैं इसको अपने हाथ से इस तरीके से नहीं। अब मेरी जान में जान है, जब तक माँ अपने बच्चे को पाल के बताती वो उसे बोलते क्यों नहीं। माँ बच्चे को पालती, बाप अपने औलाद को पालता है। मेरे दोस्तों, हम खाने कमाने के लिए नहीं आए, अय्याशी करने के लिए नहीं आए। खाने के लिए बाजार है, अय्याशी के लिए बाजार है, दुनिया कमाने के लिए दुनिया है। दुनिया वालों को दुनिया मुबारक, दुनिया वालों तुम्हें दुनिया मुबारक, हमको हमारी जन्नत मुबारक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जन्नत से तशरीफ लाती है। दुनिया वाले इंसानों में जाकर मेहनत की, इंसानियत का दर्स दिए, तालीम का दर्स दिए, सबक मोहब्बत का पढ़ाया, और इंशाल्लाह जन्नती अमल करके इंशाल्लाह वापस हमें जन्नत में जाना है। सब्र से काम लो मुसलमानों, अपनी माँ को संभालो, अपने बाप को संभालो, अपनी बहन को संभालो। अरे बाप, अब आज भी बाप उतनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। कौन सा ऐसा बाप है जो धूप धुकाला, गर्मी सर्दी बर्दाश्त ना करता हो, गरीबी के अंदर क्यों ना हो, अपने बच्चों को अपनी ताकत से ज्यादा अच्छा खिलाने पिलाने और रखने सहने की और इज्जत का दुपट्टा पहनाने की आज बाप के अंदर ताकत और जज्बा नहीं है। आज बाप बच्ची को कहने के लिए तैयार है, ऐ बेटी, मैं तेरे लिए अपनी गरीबी के अंदर इसे जितना करना था तुमने जरूर किया। ऐ बेटी, बाप बच्ची के पैर पकड़ रहा है। ऐ बेटी, मैंने पेट से तुझे पाले, जब से तुझे कभी छोड़ा नहीं। रात में तेरी फिक्र किया, दिन में तेरी फिक्र किया। मैं रहता तो दूर था, मेरे दिल में तू बसती थी, हमेशा तेरी फिक्र आती। मुझे कहीं एक दिन के लिए भी जाना होता था, मैं तेरा ख्याल करता था। मेरी लफ्ज़ जिगर, मेरी नजर, मेरे आँख के चश्मे को, मेरे दिल जिगर के पारे को किसके हवाले करके जाऊँ, किसके साए में छोड़ कर जाऊँ, किसके भरोसे पर रख के जाऊँ। बाप फिक्र में होता था। मेरे दोस्तों, कितनी बड़ी फिक्र थी बाप को बेटी की, कितनी बड़ी फिक्र थी बच्चे की। आज उलमा इकराम की मदरसों के अंदर पहली बार से 5-7 साल के बच्चियां इनके मदरसों के अंदर ले जाकर डाला जा रहा है, तो बच्चे आलिम और हाफिज बन के आते हैं। साल बच्चों को पाला जाता है, और एक दिन बाप संभालने के लिए परेशान था। ये उलमा इकराम हमारे बच्चों को, अब अंदाजा होगा तुमको, अब वो जवान बेटी के ताल्लुक से आपको फिक्र होगी, एक दिन में बच्ची को किसके हवाले करूं। ये उलमा इकराम हजारों लाखों करोड़ों मुसलमान के बच्चों को मदरसे के गेट के मदारिस बनाकर, तुम्हारे एक एक रुपये से, गरीब के चंदे से, तुम्हारी कुर्बानी से, तुम्हारी मोहब्बत से, एक एक रुपये से, मेरे दोस्तों, इनके मदरसे बनाए और इन 4 दीवारी के इस्लामी किले बनाकर तुम्हारी बच्ची को सिर्फ खिलाज पिलाने दे। पहले इतने मदरसे में इतनी सहूलत और इतना इंतजाम नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह आज मदरसों के अंदर नाश्ता भी है, दोपहर भी है, शाम भी है, कपड़े भी है, बस्ता भी है, किताबी भी है, अरे अरबी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, मराठी है। आओ दुनिया वालों, तुमने तो हमेशा हमें बदनाम किए, तुम हमारे दुश्मन नहीं समझते आए, लेकिन हम तुम्हें अपना भाई समझते आए। तुम हमेशा हमको दुश्मन समझे, तुमने हमारे नबी को दुश्मन समझा, साहबा को दुश्मन समझा, औलिया को दुश्मन समझा, बुजुर्गों को दुश्मन समझा, माँ बाप को भी दुश्मन समझा। आज हम क्या औलाद है, तुम हमको कैसे दुश्मन समझोगे। शैतान ने पढ़ाया ही तुम्हें, और तुम्हें तालीम ही ये दी गई, इंसान ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, और हमको ये तालीम दी गई कि हमारा भाई है, हमारा भाई। कुरान उठा कर देखो, अहादीस उठा कर देखो, नबी ने ये बताया कि इंसान मुसलमान का। मेरे दोस्तों, नफरतें तो फैलाते, आओ इंशाअल्लाह ये नफरतों को हम दूर करेंगे, इंशाअल्लाह इनके गलत फहमियां दूर करेंगे। जितना अमन आज अपने घर के अंदर है, जितना अमन आज अपने गली के अंदर है, जितना सुकून चैन अपने इदारे के अंदर है, जितना चैन सुकून अपने मस्जिद के अंदर है, जाओ दुनिया के बाहर मुल्कों के अंदर जाओ, जहाज में बैठ के जाओ, मुल्कों का सफर करो, जमातों की कारगुजारी
बेजारी सुनो, जो जमाते 4-4 महीने जाकर, साल जाकर, मेरा सक्का भाई, मैं पैदा हुआ जब से मेरे भाई को देखता हूँ। आज मेरे भाई मेरे अब्बा का जनाजा था, मेरा भाई राजस्थान के अंदर था, आज मेरी माँ भी चली गई, मेरा भाई जमात में है। मेरे दोस्त को इतना बुढ़ापे के अंदर, आज कंपोडिया के अंदर बेरून की जमात में मेरा भाई बुजुर्ग शख्सियत है, हजरत मौलाना शाह अब्दुल गफूर साहब का खलीफा है, लेकिन कोई नामो निशान नहीं। पैदा होने से हमारे तय करा मौलाना उस्मान साहब लुधियानी हमारे पास आ रहे, मौलाना वली रहमानी तक, पर दादा कहीं तक भी उनके आलिम, हर खानदान पर उससे नीचे तक आलिम ही मिलेगा। और हमारा सिलसिला अप्पा दादा को भी नहीं आता, मम्मी को भी नहीं आता, बच्चे को भी आता। बच्चा सोरा सो दो, मामूली सुन दो, बाप भी बड़ा सो दो, दुनिया काम करे तो शादी जाने को उठाओ उसको जल्दी से। वो लोग तैयारी करके बच्चा सबसे पहले मकतब को बोले तो बच्चा है, शादी हो गया है बच्चा है, तो कल को शादी करे तो बच्चे की बच्चे शादी होती, शादी में हो रही तो बच्चा है, बच्चे को बच्चे में हो रहे तो बच्चा बच्चे को बच्चे में हो रहे, अभी अपने नजदीक बच्चा है। खबरदार ये जहन हटाओ। मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर, स्कूल के अंदर मैं ये बच्चों को बारहा समझाता हूँ, तुम बच्चे नहीं है। बच्चा वो है जो झूले के अंदर है, बच्चा वो है जो माँ की गोद के अंदर है, बच्चा वो है जिसको हाथ से खिलाया जाता है। आज हम बच्चे नहीं है। जिस वक्त हमारा मुल्क लूटा गया, अंग्रेजों का कब्जा होने लगा, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया अंग्रेजों ने, उसका बेटा तैमूर लंग अपनी माँ का हाथ उंगली पकड़ने लगा। अंग्रेज मिनिस्टर खड़ा था, बेगम को सबको कम टाउन के अंदर, खीमे के अंदर, आज जो डिस्टेंटेड कैंपेन के जो खनारे लग रहे, आवाज चढ़ी है, इशारा करता हुआ आज भी। उस वक्त अंग्रेज का जब कब्जा हुआ मुल्क के अंदर, बहादुर शाह जफर गिरफ्तार हुआ, रमून की जेल के अंदर दाना जाने लगा। उसका बेटा शहजादा और जिनके बेगमात थे, सबको एक टेंट के अंदर, जैसा बाजार में हमारा टेंट लगता है, ऐसे टेंट के अंदर सारे बेगमात को जमा करने लगे। मिस्टर अंग्रेज का ऑफिसर आके खड़ा हुआ, कहने लगा चलो हमारे साथ, और तुम्हें फला चांदनी चौक के पास खीमा लगा हुआ है, जामे मस्जिद के पास, वहां जाके तुम्हें जमा होना है, और 5 रुपए महीना मिलने वाला है। इसलिए बीवी बादशाह की कितने मिलेगा। और वो बच्चा जब चलने लगा, ठीक है, जब कश्ती के बाद टूट जाए तो कश्ती को हवा के रुख पे छोड़ देना पड़ता है। जब मल्ला ही नहीं है, कश्ती में तुम अकेले सवार है, और मल्ला जो कश्ती चलाने वाला था वो चला गया। याद रखो, तुम्हारी कश्ती चलाने वाला तुम्हारा सका बाप है, तुम्हारी माँ है, तुम खुद है, बीवी है तो उसका शोहर है। जब ये कश्ती चलाने वालों को तुम काट दोगे, इनकी हिम्मत पस्त करोगे, तुम्हारी कश्ती चलेगा को। आज हम गलती करते हैं, बाप को मारो, माँ को मारो, बीवी को मारो, बीवी शोहर को, भाई को, अपने को काट दो, खत्म कर दो। अरे कई के लिए, जमीन के लिए, कपड़े के लिए, पैसे के लिए, इज्जत के लिए लात मारो। इसी दुनिया को हमारे अकादमी में ठोकर से मारो। ये दुनिया तुम्हारे खबर में आने वाली है। मैं बता रहा था, मौलाना वस्तानी साहब को मैं फोन किया, मेरी जमीन मेरे बाप की थी, मेरे बाप ने जमीन दी थी, हमने वक़्फ़ दी थी, हमारी लड़ाई ये थी कि हमने पैसे से नहीं दे, हमने बेचे नहीं, मेरी औलाद ने मुझे जब होश नहीं था, उस वक्त मेरे हाथ से मदरसा दी, जमीन दी थी, और वो लोग कुछ कहने वालों ने कहा कि तुमने जमीन बेची वाली। मैंने कहा वो तहरीर आज मेरे चेहरे पे बता सकता हूँ आपको। मौलाना को हमने रिपोर्ट लिखी, तहरीर क्या, हमने जमीन बेची नहीं, जमीन वाक़ है, अल्लाह के नाम पे वक़्फ़ है। हजरत का फोन आया, जब कमेटी बैठी, वहाँ से मौलाना साहब आए और बात हुई, तो हजरत ने कहा बेटा हम कितने दिन ये सब मदरसा तुम्हारा सब अल्लाह का है और अल्लाह का मल्ला है। कोई जवान इतनी दुआ दी, मैंने कहा हजरत इस जमीन, ये मदरसा, ये सब कुछ अल्लाह के लिए आपके हवाले। आज भी कितने लोगों ने मस्जिद दी होगी, कितने लोगों ने ईंट काटा, पत्थर उठाए होंगे। मेरे दोस्तों, कितने कुर्बानी के बाद आज ये मस्जिद तामीर होगी, कितने कुर्बानी के बाद बाप ने घर अपना बनाया होगा। मेरे दोस्तों, ताजमहल देखने की ख्वाहिश मत करो, ताजमहल दुनिया देखेंगी, दुनिया वालों के लिए बनाया गया है। तुम्हारा ताज, ये जो सिर पर है, ये तुम्हारा ताज है, और जिस बाप ने जन्म दिया, माँ ने जहाँ जनी थी, वो तुम्हारा घर है, वही तुम्हारा महल है। सर पे ताज महल, ये ताज पर किसको बोलते हैं? ताज और महल समझ में आया? ये सर पे जो है वो ताज है। जिस घर में तुम आज गरीब नहीं, जो झोपड़ा गरीब का है, वो भी तुम्हारा बोलते क्यों?
नबी ने ये तालीम दी, दुनिया के एतबार से अपने से कमतर को देखो और दीन के एतबार से, ईमान के एतबार से, अखलाक के एतबार से, सिफत के एतबार से, अच्छे काम के एतबार से इन उलमा को, इन आइम्मा को, अच्छे काम करने वालों को, सोशल वर्कर को देखो, रात दिन सोशल वर्कर वालों को मामूली खेल तमाशा है। उतरो ना तुम उसके बराबर। कैसे कैसे गैरों को, कैसे कैसे ऑफिसरों को मेस करना पड़ता है। कितनी उनके कहते हैं, उनकी चूतियां चाटते हैं। तुम्हारा बाप ने चाटा चूतिया, कौन चूती चाटता है? किसके अंदर चूती चाटने के? इसके दिल में मोहब्बत है रसूलुल्लाह की, इसके दिल में अजमत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत की। अगर ये मुजाहिदीन ना होते, ये वर्कर ना होते, ये जिम्मेदार ना होते, हमारे घर का कोई लीडर और बॉस होता, आज गरीब के पैसे कोई दबाया, अगर किसी पे जुल्म हुआ, किसी की बेटी पे आंच आ गई, किसी का दुपट्टा लटका गया, किसी की दाढ़ी को हाथ लगाए, यही तो वो वर्कर शॉपिंग है। ये कहते तुम्हारे बाप में दम है तो हम पहले हम पर आओ, फिर हमारे माँ के हाथ लगा। हम खबर नहीं करते। अगर तुम्हें गैर भी अच्छा इंसान मिला, हाथ पकड़ो, भैया बोलो उसे, अपने भाभी समझो, अपनी माँ समझो, अपनी बेटी समझो। दुनिया वालों ने देखे, सबके बाप उनके जनाजे में नहीं थे। मुसलमानों के आखिर तुम कोशिश करो को खबर आखिरी ठिकाने तक पहुंचे। यहाँ से वहां तक गए, कोई खाने का पतरा खतरा पिलाने को तैयार नहीं था, रोटी का टुकड़ा खिलाने को नहीं तैयार था। मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें खोली, मदरसे खोले, खानकाहें खोले, अपने दरवाजे खोले। आओ, ये तुम्हारे लिए खाने और पीने का इंतजाम है। आज भी शाह इमाम पंजाब के अंदर बाढ़ आई है। मौलाना ने ऐलान कर दिए पूरे पंजाब के अंदर जितने मस्जिदें हैं, सारे मस्जिदों में सिख भाई, हिंदू भाई, किसी भी समाज का वो मस्जिद आके आराम कर सकता है, ठिकाना बना सकता है। क्या नहीं कर सकता है? हमारे नबी की सीरत है। एक एराबी हमारे मस्जिद नबी के अंदर है, मस्जिद नबी के अंदर है। साहबा बैठे हुए हैं, देहाती आकर पेशाब करने लगे। वो क्या करने लगे? बोलते क्यों पेशाब? साहबा देखे तो नबी ने रुका है, पेशाब करने दो, इस्तिंजा से फारिग होने दो। मस्जिद है और इस्तिंजा करता है। साहबा दौड़ने लगे, नबी ने रुका। जब इस्तिंजा से फारिग हुआ, नबी उठे, पानी का डोल लिए और उस इस्तिंजा अपने हाथों से उम्मती का, नबी अपनी उम्मती का इस्तिंजा धो रहा है, माँ अपने बच्चे का धोता है, भाई भाई को धोता है। मुसलमानों, ये उलमा के पेशानी का बोसा लो, सुन्नत है पेशानी का बोसा लेना, आलिम को देखना इबादत है। हमारे अकाबरीन चीख चीख कर करे, 50 साल हो गए मौलाना निजात साहब रहमतुल्लाह अलैह की तहरीर गुजार रहे। ये कहने के आलिम को देख इबादत समझो, उसके अमल को मत देखो। माँ के सपने देखते रहते, माँ का चेहरा देखो, खाली इबादत मिलेगी, हज के उम्रे का सवाब मिलेगा। बाप का चेहरा देखो, उलमा का चेहरा देखो, उलमा का हुफाज की चेहरा देखो, इनसे मोहब्बत और माया करो। मेरे दोस्तों, मुसलमान भाई कहाँ पे मिला वो हमारा भाई है। मेरे दोस्तों, आज मुसलमानों के बात समझ में आ गई, नौजवानों के बात समझ में आ गई कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां अगर जाना ही है इन्हें कहीं, तो अपने भाई के साथ क्यों नहीं जाती? ये भाई इसको इज्जत देगा, दीन और ईमान संभालेगा, अपनी जान देकर ये अपनी इसकी इज्जत और आबरू को संभालेगा। ये ईमान भी लूटेंगे, दीन भी लूटेंगे, इज्जत भी लूटेंगे, सब लूट कर इसको तह तह कर देंगे। ये फूल इनके हाथ में चले जाए, कुत्तों की तरह लूट जाएंगे। याद रखो इस बात को। मौलाना हबीबुर रहमान साहब आज भी जामे मस्जिद लुधियाना की गवाही देती होंगी। वो कहते थे, एक वक्त आएगा इनकी बेटी जब जाएंगी, जब जिनको तुर्रे पड़ेंगे, इनको सोटे खींचेंगी पुलिस, उस वक्त इनको याद आएगा जब इनकी बेटियां घर से जाएंगी। अच्छा याद है बचपन 2005 में बात सुने वाली, जब इनकी बेटियां जाएंगी, जब मुसलमान को होश आएगा। आज उस वक्त कहेंगे, एक मौलवी था जो ये कहता था, मुसलमानों अपने घर की, अपने महल्ले की, अपने गांव की हिफाजत करो। मुसलमान ने सिर्फ नमाज पढ़ना, घर को जाना, चोले चपाती, मुर्गी बिरयानी, धमाके, मीठे चावल, खीर चपाती, और ये वो तमाने को समझे कि वो मुसलमान मेरे दोस्तों अजीज, आओ कुर्बानी देने के लिए मैं तुम्हें तैयार करके जा रहा हूँ। क्या पता मेरी हाजिरी यहाँ होगी होगी, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मेरे अकाबिरीन इतने दूर नहीं आ सके। मैं एक तालिब इल्म हो के मेरे को समझ में आया, एक महीने के अंदर मेरे को समझ में आया कि एक महीने में मैं कहाँ जा सकता हूँ। मेरे दोस्त, हमारा अकाबिरीन पूरी दुनिया में कहाँ जाए।
हमारे नबी यहाँ नहीं आए, साहबा यहाँ न आए, लेकिन हमारे नबी का दीन, हमारे नबी का कलमा, हमारे नबी का कुरान, हमारे नबी का इस्लाम बोलो हमारे पास आया नहीं आया बोलो जोर। अब मैं हाथ ऊपर करके आपसे दावा लेता हूँ, करो हाथ ऊपर करके इंशाल्लाह। मेरी जान में जान है जब तक, मेरे खून में खून है जब तक, आखिरी दम तक इंशाल्लाह कलमे की, कुरान की, इस्लाम की और नबी की मोहब्बत की और खत्म नबूवत की इंशाल्लाह, माँ बाप की और बीवी बच्चों की इज्जत और आबरू की और अपने महल्ले की मस्जिद की इंशाल्लाह मैं हिफाजत करूँगा। मुझे किसी और को देखने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हमारा नबी अकेला मक्का के अंदर खड़ा हुआ कि बताओ तारीख के अंदर सीरत उठाकर बताओ हमारे नबी ने किसी हुकूमत से मदद नहीं मांगी है, किसी हुकूमत से मदद नहीं मांगी। अकेला नबी ने इस्लाम की दावत दी, अकेले नबी ने कुरान की तालीम दी, अकेले नबी ने इस्लाम की दावत दी। 23 साल के अंदर हमारे नबी ने 23 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम और कलमा फैल गया। किसी के पाप में ताकत नहीं, सारी दुनिया मिलकर भी कलमे को, कुरान को और इस्लाम को बिगाड़ नहीं सकती। इन सब का बिगड़ सकता है लेकिन इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ने। आज भी तुम्हें मोहब्बत देकर जाओ भाई भाइयों, जो अमर सुकून हमारे घर गाँव के अंदर है इसको और मजबूत करो। इन्हें क्या कर रहा, उन्हें क्या कर रहा, कुछ मत कहो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कितनी खिदमत कर सकता हूँ। मशवरा देने के लिए हमारा इस्लाम मौजूद है, मशवरा देने के लिए अकाबिर उलमा मौजूद है। हमें ये ऐसा करो वैसा करने को मौजूद है। तुम कितना वजन उठा सकते, तुम कितना बार कर सकते, तुम कितना ताउन कर सकते, तुम कितने रुपये दे सकते, ये बात कहो, ये ऐसा रखो। भाई ये कुछ बोलने की जरूरत नहीं, जो से कहना है सब अच्छा चला करेंगे भाई इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, आप लोगों की मोहब्बत अल्लाह का फजल रहा। सुबह से मेरी आवाज़ बैठी, कल भी मेरी आवाज़, लेकिन बात आपने सुन ली। अल्लाह का फजल है, अल्लाह की मोहब्बत है, उसका मदद है। इंशाअल्लाह इस जज्बे से रहेंगे और दुनिया को डरना नहीं है। हमारे नबी ने डरना नहीं सिखाया, कुरान में उठा कर देखो डरना नहीं है। हम खुदा के अलावा किसी और से नहीं डरते। हम सारे ये एक हुकूमत नहीं, सारी दुनिया को ललकार कर कहते हैं, याद रखो खबरदार। सारी दुनिया को, मीडिया को चालू करो, सारी सीसी कैमरे चालू करो, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितने पतंगड़े सतुंगड़े और जितने शैतान शतुंगड़े हैं, सारी दुनिया के शयातीन को मिला के एक ताकत बनाओ और सुन लो, कान खोलकर सुन लो बड़ा जोर से। हमारा रब अल्लाह है, हमारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, हमारा दीन इस्लाम है और अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ के मुसलमान है। कहो जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, अल्लाह के आखिरी रसूल है। मेरा इस पर ईमान है और मैं ईमान लाया हूँ। नबी के अलावा दुनिया के अंदर कोई भी और कहीं पर भी नबूवत का दावा करे, ईसाईयत का दावा करे, मसीहियत का दावा करे, वैसा बंदा, ऐसा शख्स को छूटा है, कसाब है, दज्जाल है, देश का दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ताकत से हम ऐसे बंदे को सबक सीखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह काफ़ी देर से सुन रहे थे मगरिब के बाद से, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो है तो इसलिए जो है आप हजरात मगरिब की नमाज से लेकर तकरीबन अभी जो है 9:30 बज रहे हैं, काफ़ी वक्त दे रहे। लेकिन मेरे भाइयों, जो भी हमने वक्त दिया है, बैठे हैं, इसमें बहुत सारे लोग तकाजे वाले भी हैं, कोई बीमार भी हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह इसी बैठने की और तकाजे को अल्लाह की कसम अल्लाह नबी की बरकत से ज़रूर मग़फ़िरत करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हम जो बैठे यहाँ कोई हमारा मफाद नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, ना आपका, ना मेरा, ना किसी और का। लेकिन ये जो बैठे ये सिर्फ नबी की मोहब्बत, और नबी की मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है
کہ فرمایا کہ صرف محبت سے اللہ جہنم سے نکل کر جنت میں ضرور داخل کرتا ہے. اور آپ نے اشعار بھی سنے شاعروں سے, اس کے علاوہ حضرت کی بات بھی سنے. حضرت کی بات کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں تھیں جس کے اندر چھوٹے سبق ہمارے لیے, کہ اس کے اندر ایک تو تعلیم و تعلم کے اعتبار سے حضرت نے صبر کے اعتبار سے بھی بتلایا, اور بزدلانہ حرکت کو چھوڑ کر حوصلے والی زندگی گزارو, اور ہمت اور قوت کے ساتھ میں زندگی کے بارے میں بھی بتلایا. اور حضرت نے جتنی اللہ کے نبی کی سیرت بتائی وہ سیرت مکمل نہیں بتلائی, اور سیرت آج تک پیدائش سے لے کر فرمایا کہ جتنے علماء نے سیرت لکھی کتابوں کی, تو کس نے 500 صفحات کی لکھی, کس نے 600 صفحات کی, کس نے جو اللہ کے نبی کی سیرت 200 صفحے کے اندر, کس نے 1000 1500 صفحات کے اندر لکھی. لیکن آخر میں ہر لکھنے والے نے آخر میں یہ بات لکھی ہے کہ چلتا ہی رہا صدیوں سے قلم پوری نہ ہوئی روداد کرم. چلتا ہی رہا صدیوں سے قلم پوری نہ ہوئی روداد کرم, دریاؤں کا پانی سوکھ گیا اوصاف نبی لکھتی لکھتی. کوئی شاعر ایسا دنیا میں گزرا نہیں جس نے 1000 صفحات پر اللہ کے نبی کی زندگی کو لکھا, پیدائش سے لے کر جو ہے اس دنیا سے پردہ فرما جانے تک. فرمایا اس نے بھی آخر میں شعر لکھا کہ میں اللہ کے نبی کی پوری زندگی اس قلم سے کتاب اور کاپی کے اوپر نہیں لکھ سکتا. تو فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی کی سیرت ہے, اور نبی کی سیرت تو بہت لمبی ہے. اس کے علاوہ میرے بھائیو, حضرت کے آخر میں ایک بات تھی کہ اپنی زندگی ایک طاقت کے ساتھ میں, ہمت کے ساتھ میں ایمان والے کو گزارنے کی ضرورت. اگر ایمان والا بزدلانہ اگر زندگی گزارے گا تو فرمایا کہ اس سے بد نصیبی دھرتی پر کوئی آدمی نہیں ہو سکتا. آدمی کو قوت کے ساتھ, اس لیے بہت اچھے شعر ایک شاعر نے لکھا ہے کہ کیا آرزو کروں میں تیری آرزو کے بعد, اور کچھ بھی نہیں بچے گا میرے گفتگو کے بعد, اور دنیا کا کوئی خوف مجھے کیا ڈرائے گا, کھانے یہ دودھ پلایا وضو کے بعد. تو فرمایا کہ آدمی کو, ایک مومن کو ایک قوت کے ساتھ میں اور ہمت کے ساتھ میں آدمی کو زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اس لیے الحمدللہ ہم سب یہ دعا کرتے کہ جتنے دیر ہم بیٹھے, جو کچھ بھی سنا ہے, پڑھا ہے, جتنے بھی اشعار ہم نے سنے ہیں, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں پر جو ہے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ اس بیٹھے کو اللہ قبول فرمائے اور اس کو ذخیر آخرت بنائے. اسی طریقے سے جو ہے ہمارے جو ہے جتنے بھی جن لوگوں نے خدمت کی, اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے. اور جو ہے ہمارے مدرسے کے ناظم مولانا مجیب صاحب سے درخواست ہے کہ وہ دعا کے ساتھ میں جو ہے پروگرام کا اختتام. بسم الله الرحمن الرحيم.